لیکن میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس لڑکی کے لائر کے لیے آج کورٹ میں یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج کا سیٹ داؤد وہی پہلے کا موسیٰ جواری ہے۔ موسیٰ کا اصل ریکارڈ غائب کروا دیا ہے اس کے پرانے شہر سے۔ جی سر، آئی انڈرسٹینڈ۔ تہہ دل سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنی ایفرٹ کی، بٹ تھینک یو سو مچ۔ یو ویلکم۔ یور آنر، لگتا ہے میرے فاضل دوست جوش خطابت میں ایک اہم نکتہ بھول گئے ہیں کہ مس پیا کو ایک تگڑی سفارش کا سہارا حاصل ہے۔ اب یہ سفارش کون ہے یہ تو صرف مس پیا ہی بتا سکتی۔ حیرت ہے میرے فاضل دوست، اب تک میری غیر متعلقہ بحث کی تکرار کو روکنے کی کوشش میں سرگرداں تھے، اب خود ہی بات کا رخ پلٹ رہے۔ بہرحال مائی لارڈ، یہ ہے اسپیشل برانچ کا ریکارڈ اور ایف آئی آر کی کاپی جو آج سے کئی برس پہلے جوراباد سکر میں کاٹی گئی۔ میں پیش کرتا ہوں۔ جناب، میں نے بھی آتے ہوئے یہ برسوں پرانی ایف آئی آر کی کاپی حاصل کی تھی، اور اس وقت میرے پاس بھی اسی رپورٹ کی کاپی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ برسوں پرانے کسی صفحے پہ لکھے ہوئے شکستہ لفظ، یہ مٹی مٹی سی عبارت، یہ ادھوری تحریر۔ مجھے حیرت ہے اس کاغذ کی بنیاد پر جو اس وقت کے کسی موسیٰ نامی شخص کے خلاف ہے۔ یہ لوگ میرے کلائنٹ کو برسوں بعد بھی عدالت میں گھسیٹ رہے ہیں۔ میں مس پیا کو کٹہرے میں بلانا چاہوں اس سے پہلے کہ میں اس ایف آئی آر پہ کوئی آرگیومنٹ بھی کروں، یور آنر۔ اجازت ہے، یو میں پروسیڈ۔ تھینک یو۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس لڑکی کے لائر کے لیے آج کورٹ میں یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج کا سیٹ داؤد وہی پہلے کا موسیٰ جواری ہے۔ موسیٰ کا اصل ریکارڈ غائب کروا دیا ہے اس کے پرانے شہر سے۔ جی سر، آئی انڈرسٹینڈ۔ تہہ دل سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنی ایفرٹ کی، بٹ تھینک یو سو مچ۔ یو ویلکم۔ یور آنر، لگتا ہے میرے فاضل دوست جوش خطابت میں ایک اہم نکتہ بھول گئے ہیں کہ مس پیا کو ایک تگڑی سفارش کا سہارا حاصل ہے۔ اب یہ سفارش کون ہے یہ تو صرف مس پیا ہی بتا سکتی۔ حیرت ہے میرے فاضل دوست، اب تک میری غیر متعلقہ بحث کی تکرار کو روکنے کی کوشش میں سرگرداں تھے، اب خود ہی بات کا رخ پلٹ رہے۔ بہرحال مائی لارڈ، یہ ہے اسپیشل برانچ کا ریکارڈ اور ایف آئی آر کی کاپی جو آج سے کئی برس پہلے جوراباد سکر میں کاٹی گئی۔
मैं पेश करता हूं। जनाब, मैंने भी आते हुए ये बरसों पुरानी एफआईआर की कॉपी हासिल की थी और इस वक्त मेरे पास भी इसी रिपोर्ट की कॉपी है जो आपके हाथ में है। ये बरसों पुराने किसी सफे पे लिखे हुए शिकस्ता लफ्ज, ये मिट्टी मिट्टी सी इबारत, ये अधूरी तहरीर। मुझे हैरत है इस कागज की बुनियाद पर जो उस वक्त के किसी मूसा नामी शख्स के खिलाफ है। ये लोग मेरे क्लाइंट को बरसों बाद भी अदालत में घसीट रहे हैं। मैं मिस पिया को कटहरे में बुलाना चाहूं। इससे पहले कि मैं इस एफआईआर पे कोई आर्ग्यूमेंट भी करूं, योर ऑनर, इजाजत है। You may proceed. थैंक यू। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूं कि जो वो दावा कर रहे हैं इस लड़की के लॉयर के लिए आज कोर्ट में ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज का सेठ दाऊद वही पहले का मूसा जवारी है। मूसा का असल रिकॉर्ड गायब करवा दिया है उसके पुराने शहर से। जी सर, आई अंडरस्टैंड। तहे दिल से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे लिए इतनी एफर्ट की, बट थैंक यू सो मच। You're welcome. योर ऑनर, लगता है मेरे फाजिल दोस्त जोश खिताबत में एक अहम नुक्ता भूल गए कि मिस पिया को एक तगड़ी सिफारिश का सहारा हासिल है। अब ये सिफारिश कौन है, ये तो सिर्फ मिस पिया ही बता सकती। हैरत है मेरे फाजिल दोस्त, अब तक मेरी गैर मुतलका बहस की तकरार को रोकने की कोशिश में सरगर्दा थे। अब खुद ही बात का रुख पलट रहे। बहरहाल माय लॉर्ड, ये है स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड और एफआईआर की कॉपी जो आज से कई बरस पहले जोराबाद सक्कर में काटी गई। मैं पेश करता हूं। जनाब, मैंने भी आते हुए ये बरसों पुरानी एफआईआर की कॉपी हासिल की थी और इस वक्त मेरे पास भी इसी रिपोर्ट की कॉपी है जो आपके हाथ में है। जुनीद रात के अंधेरे में चुपके से जिज्जी के पास पहुंच जाता है, मगर मायरा उसका पीछा करते हुए सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। अंधेरे में जुनीद और जिज्जी को मुस्कुराते हुए बातें करते देखकर मायरा के दिल में एक बहुत बड़ा शक जन्म ले लेता है और वो फौरन अपने कमरे में वापस आ जाती है। उधर जुनीद जिज्जी से अपने दिल की बात कह देता है कि वो उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता और सिर्फ उसी का होना चाहता है, जिस पर जिज्जी मुस्कुरा देती है और कहती है कि उसे मालूम है उसकी चाहत ने जुनीद को सारी रात बेचैन रखा है, मगर साथ ही उसे यह खौफ भी है कि अगर मायरा के सामने उन दोनों का सच आ गया तो क्या होगा। जुनीद फौरन कहता है कि वो जिज्जी के लिए मायरा को छोड़ने तक के लिए तैयार है और निकाह का वादा मांगता है, जिस पर जिज्जी रजामंदी जाहिर कर देती है। खुशी से बेकाबू होकर जुनीद घर वापस आता है तो मायरा उसे गुस्से में इंतजार करते देखती है। सवाल जवाब के दौरान जुनीद की खामोशी ही सब कुछ जाहिर कर देती है और आखिरकार वो एतराफ कर लेता है कि वो जिज्जी से मोहब्बत करता है और उसके लिए तलाक देने को भी तैयार है। ये सुनकर मायरा टूट जाती है, उसे घर से निकाल देती है और सारी रात बाहर रहने की सजा देती है। जुनीद की दस्तक के बावजूद मायरा दरवाजा नहीं खोलती और जिज्जी उसे अपने पास ठहरा लेती है, जिससे मायरा का शक यकीन में बदल जाता है। अगले दिन हालात मजीद बिगड़ जाते हैं।
मायरा अपने वालिदैन के घर चली जाती है और जुनीद जिज्जी के इश्क में इंधा होकर तलाक के कागजात तक बनवा लेता है। ऊपर से जिज्जी ये सब तमाशा देखकर खुश होती रहती है और जुनीद को मजीद अपने करीब कर लेती है। मगर ये सब देखकर जिज्जी की नौकरानी आसिया चौंक जाती है और फैसला कर लेती है कि वो मायरा के सामने जिज्जी की तमाम साजिशें बेनकाब करेगी। अगर आप आसिया को जिज्जी की साजिशों का पर्दाफाश करते देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुनीद और मायरा की जिंदगी बज़ाहिर पुरस्कून दिखाई देती थी, मगर जिज्जी की खामोश साजिशों ने इस रिश्ते की बुनियादें हिला कर रख दी थीं। रात के अंधेरे में जुनीद का बार बार जिज्जी के पास जाना महज एक इत्तिफाक नहीं बल्कि एक गहरी मंसूबा बंदी का हिस्सा था, जिसे मायरा ने अपनी आंखों से देखकर महसूस कर लिया। जुनीद और जिज्जी के दरमियान होने वाली सरगोशियां, मुस्कुराहटें और वादे इस बात का सबूत थे कि दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे हैं। मायरा के दिल में पैदा होने वाला शक दरअसल उसकी टूटती हुई दुनिया की पहली दस्तक था, क्योंकि वो जुनीद पर अंधा एतमाद करती थी। जुनीद का मायरा से नजरें चराना और सवालों के जवाब में खामोशी इख्तियार करना उसके जुर्म का सबसे बड़ा सबूत बन गया। और जब उसने जिज्जी से मोहब्बत और तलाक देने की बात खुलेआम कही तो मायरा के लिए ये लम्हा क़यामत से कम न था। गुस्से, दुख और बेइज्जती के आलम में मायरा का जुनीद को घर से निकाल देना उसके खुददारी भरे फैसले की अलामत था, मगर जिज्जी ने उसी लम्हे को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए जुनीद को अपने घर पनाह दे दी। मायरा का जिज्जी के घर जाकर अपने शौहर के बारे में सवाल करना और जिज्जी का मासूम बनकर इनकार करना इस बात को जाहिर करता है कि जिज्जी कितनी चालाक और मकार थी। वक्त के साथ साथ जुनीद जिज्जी की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि उसने मायरा के जज्बात, इज्जत और रिश्ते की हिरमत सब कुछ भुला दिया, यहाँ तक कि तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए। दूसरी, जुनीद, मायरा और जिज्जी के दरमियान चलने वाली ये कहानी महज मोहब्बत का मुसल्लस नहीं बल्कि लालच, धोखे और खुद गरजी की एक दर्दनाक मिसाल है। जुनीद जो एक वक्त में मायरा की मोहब्बत, एतमाद और इज्जत का अमीन था, आहिस्ता आहिस्ता जिज्जी की चालाक मुस्कुराहटों और मीठी बातों के जाल में ऐसा फंसा कि उसे न अपने घर की हरमत याद रही और ना ही अपनी बीवी के जज्बात की कदर। रात के अंधेरों में होने वाली मुलाकातें दरअसल गुनाह और फ़रेब की वो पहली सीढ़ी थीं जिन पर चढ़कर जुनीद अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। मायरा का शक कोई वहम नहीं बल्कि उस औरत का दिल था जो अपने शौहर की बदलती हुई आंखों और सर्द रवैये को महसूस कर चुका था। जब जुनीद ने साफ लफ्जों में जिज्जी के लिए तलाक देने की बात की तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं था बल्कि मायरा के ख्वाबों, उसके एतमाद और उसके निकाह पर कारी ज़र्ब थी। मायरा का जुनीद को घर से निकाल देना इस बात की दलील था कि वो कमज़ोर नहीं बल्कि खुददार औरत है जो धोखे के साथ समझौता नहीं कर सकती, चाहे उसकी कीमत तन्हाई ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ जिज्जी का किरदार शुरू से ही एक खामोश शिकारी का था जो मुनासिब मौके के इंतजार में थी। उसने जानबूझकर मायरा के शक को बढ़ने दिया, जुनीद को अपने हिसन और झूठे वादों के जरिए मजीद करीब किया और उसकी कमजोरियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। जुनीद का रात गुजारने के लिए जिज्जी के घर जाना दरअसल उसके जवाल की आखिरी हद थी, जहां उसने न सिर्फ अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी बल्कि अपनी इज्जती नफ्स को भी दांव पर लगा दिया। मायरा का जिज्जी के दरवाजे पर जाकर अपने शौहर को तलाश करना और जिज्जी का मासूम बनकर इनकार करना इस बात का सबूत था कि जिज्जी हर हाल में खुद को पाक साफ दिखाना चाहती थी, मगर कुदरत की खील में हर राज हमेशा राज नहीं रहता। जिज्जी की नौकरानी आसिया सब कुछ देख और समझ रही थी। आसिया ने महसूस किया कि जिज्जी न सिर्फ एक घर तोड़ रही है बल्कि एक औरत की जिंदगी, इज्जत और मुस्तकबल से भी खेल रही है। यही एहसास आसिया के दिल में बेगाउत बनकर उभरा और उसने तहैया कर लिया कि वो सच को सामने लाएगी। मायरा के सामने जिज्जी की तमाम साजिशों, झूठे वादों और मकरवा मंसूबों को बेनकाब करेगी ताकि धोखे पर मबनी ये रिश्ता अंजाम को पहुंचे और इंसाफ का बोलबाला हो। इस कहानी की गहराई में जाएं तो साफ नजर आता है कि ये सिर्फ 3 किरदारों की जाती ख्वाहिशात की टिकर नहीं बल्कि एतमाद के टूटने, नफ्स की कमजोरी और औरत की खुददारी का इम्तिहान है। जुनीद इब्तदा में एक आम सा शौहर था, मगर जिज्जी की नज़र में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका बेकाबू और तारीफ का भूखा होना था। जिज्जी ने बड़ी खामोशी से उसके दिल में ये एहसास पैदा किया कि वो मायरा से ज़्यादा हुसैन, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा प्रकशिश है, और यही मुवाजना जुनीद के अंदर बेचैनी और बगावत को जन्म देता गया। रात के अंधेरे में होने वाली मुलाकातें दरअसल दिन की रोशनी से डरने वाली हकीकत का अक्स थीं, जहां मोहब्बत कम और हौस ज़्यादा थी।
مائرا نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا دل پہلے ہی جواب دے چکا تھا، کیونکہ عورت کا دل الفاظ سے پہلے رویوں کو پڑھ لیتا ہے۔ مائرا کا کمرے میں جا کر خاموش ہو جانا کمزوری نہیں، بلکہ اس طوفان کی خاموشی تھی جو اندر ہی اندر سب کچھ تباہ کر رہا تھا۔ جب اس نے جنید سے سوال کیا اور جواب میں خاموشی پائی تو اسے کسی ثبوت کی ضرورت نہ رہی۔ جنید کا ججی کے لیے طلاق کا اعلان دراصل اس کی اخلاقی موت تھی، کیونکہ نکاح جیسے مقدس رشتے کو اس نے چند لمحوں کی خواہش پر قربا۔ یہ داستان دراصل انسانی نفس کی کمزوری محبت کے نام پر کیے گئے دھوکے اور ایک عورت کی پامال ہوتی ہوئی عزت کی مکمل تصویر ہے۔ جنید نے جب ججی کی طرف قدم بڑھایا تو وہ یہ بھول گیا کہ اس کے ساتھ مائرا کا اعتماد، اس کی محبت اور ایک پورا گھر وابستہ ہے۔ ججی نے بڑی مہارت سے جنید کے دل میں یہ احساس بٹھایا کہ وہی اس کی اصل خوشی ہے، وہی اس کی خواہشوں کی تکمیل کر سکتی ہے، اور یوں اس نے جنید کو آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ رات کی تاریکی میں ہونے والی ملاقاتیں صرف چھپ کر ملنے کا ذریعہ نہیں تھیں، بلکہ اس بات کا ثبوت تھیں کہ یہ رشتہ سچائی اور روشنی سے ڈرتا ہے۔ مائرا نے جب یہ سب دیکھا تو اس کے دل میں اٹھنے والا شک ایک چیخ بن کر اس کے وجود کو چیر گیا، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس شخص کو اس نے اپنا محافظ سمجھا وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا زخم بن جائے گا۔ جنید کی خاموشی، اس کے بدلے ہوئے لہجے اور ججی کے حق میں دیا گیا فیصلہ مائرا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ طلاق کا لفظ محض ایک قانونی اعلان نہیں، بلکہ ایک عورت کے خوابوں، اس کی شناخت اور اس کے مستقبل کو رونڈ دینے کے مترادف تھا۔ مائرا کا جنید کو گھر سے نکال دینا اس بات کا واضح اعلان تھا کہ وہ محبت کے نام پر ہونے والی بے عزتی کو قبول نہیں کرے گی۔ دوسری جانب ججی نے اسی لمحے کو اپنی کامیابی سمجھا، جنید کو اپنے قریب کر کے یہ یقین دلایا کہ وہی اس کی دنیا ہے، مگر حقیقت میں وہ اسے اپنی انا اور حوص کی آگ میں جھونک رہی تھی۔ جنید بھی اب اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے نہ معاشرے کی پرواہ تھی اور نہ انجام کی۔ وہ صرف اس راستے پر چل رہا تھا جس کا اختتام تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی تباہی کے بیچ ایک کردار خاموشی سے سچ کا چراغ تھامے کھڑا تھا، اور وہ تھی نوکرانی آسیہ۔ آسیہ نے ہر منظر، ہر جھوٹ اور ہر سازش کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ ججی کی مسکراہٹوں کے پیچھے ایک زہریلا ارادہ چھپا ہے جو نہ صرف مائرا کی زندگی برباد کر رہا ہے بلکہ جنید کو بھی انسانیت سے دور لے جا رہا ہے۔ مائرا کا اپنے والدین کے گھر جانا وقتی پسپائی ضرور تھی، مگر در حقیقت یہ اس کی نئی طاقت کی شروعات تھی۔ آنے والے وقت میں جب آسیہ سچ بولے گی تو ججی کے بنائے ہوئے خواب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ جھوٹ، فریب اور ناجائز خواہشات پر کھڑی عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، جبکہ سچائی اور صبر آخرکار انصاف کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ یہ کہانی جوں آگے بڑھتی ہے، اس کے کرداروں کی اصل حقیقت مزید کھل کر سامنے آتی جاتی ہے۔ جنید کا زوال دراصل ایک دن یا ایک رات میں نہیں ہوا، بلکہ یہ اس کی اندرونی کمزوریوں، خودغرضی اور وقتی خواہشات کا نتیجہ تھا۔ اس نے ججی کی توجہ اور تعریف کو محبت سمجھ لیا اور یہ بھول گیا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، دھوکہ نہیں۔ ججی نے بڑے صبر اور چالاکی سے جنید کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ مائرا اسے نہیں سمجھتی، اس کی قدر نہیں کرتی، اور یوں اس کے دل میں اپنی ہی بیوی کے خلاف بدگمانی پیدا کی۔ یہی بدگمانی آہستہ آہستہ نفرت میں بدل گئی، اور نفرت نے جنید کو اس حد تک گرا دیا کہ وہ نکاح جیسے مقدس رشتے کو توڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ مائرا کے لیے یہ صرف شوہر کی بے وفائی نہیں تھی، بلکہ اس کی پوری زندگی کا بکھر جانا تھا، کیونکہ اس نے جنید کے ساتھ اپنے خواب، اپنی امیدیں اور اپنا مستقبل جوڑ رکھا تھا۔ مائرا کی خاموشی، اس کا ضبط اور آخرکار خودداری کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ کمزور نہیں۔ اس مرحلے پر کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں ہر کردار اپنے کیے کا بوجھ اٹھانے کے قریب نظر آتا ہے۔ جنید جو اب ججی کی قربت میں وقتی سکون محسوس کر رہا تھا، اندر ہی اندر ایک عجیب بے چینی کا شکار ہونے لگتا ہے، کیونکہ مائرا کی خاموشی اور اس کا یوں اچانک چلے جانا اس کے ضمیر پر بوجھ بن چکا تھا۔ ججی بظاہر فتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جنید کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اسے محبت نہیں بلکہ ملکیت سمجھتی ہے، ایک ایسی چیز جسے وہ مائرا سے چھین کر اپنی انا کی تسکین چاہتی تھی۔ مائرا دوسری جانب اپنے والدین کے گھر بیٹھ کر صرف رو نہیں رہی، بلکہ ہر لمحہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ کب تک خاموش رہے گی، کب تک دھوکے کو تقدیر مان کر قبول کرتی رہے گی۔ اس کے دل میں ٹوٹے ہوئے اعتماد کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی
जन्म ले रहा है कि अगर वो आज सच के लिए नहीं खड़ी हुई तो जिज्जी जैसी औरतें मजीद घरों को इजाड़ती रहेंगी। यही वो वक्त है जब आसिया के दिल में पलने वाला फैसला मजीद मजबूत हो जाता है। आसिया ने जिज्जी के दोहरे चेहरे, जुनीद को दिए गए झूठे वादों और मायरा के खिलाफ की गई साजिशों को बहुत करीब से देखा था। वो जान चुकी थी कि ये खामोशी अब जुर्म के बराबर है। आने वाले दिनों में आसिया का सच बोलना न सिर्फ जिज्जी के बनाए हुए फरेब के जाल को तोड़ देगा, बल्कि जुनीद को भी ये एहसास दिलाएगा कि उसने एक वफादार बीवी को खोकर किस कदर बड़ी गलती की है। ये कहानी अब महज मोहब्बत और धोखे की नहीं रही, बल्कि इंसाफ, सच्चाई और एक औरत की खुददारी की जंग बन चुकी है, जिसका अंजाम हर उस शख्स के लिए सबक होगा जो ख्वाहिश के अंधेपन में रिश्तों की हिरमत को भुला देता है। कहानी की तह में इतरते जाएं तो ये वादे हो जाता है कि जिज्जी ने सिर्फ जुनीद को ही नहीं बल्कि पूरे माहौल को अपने फरीब के जाल में जकड़ रखा था। वो हर मौके पर खुद को मजलूम, तन्हा और मोहब्बत की हकदार जाहिर करती, जबकि पसपर्दा वो मायरा के खिलाफ जहर घोल रही थी। जुनीद उसकी बातों में आकर ये समझ बैठा कि मायरा उसकी कदर नहीं करती, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बराकस थी। मायरा ने हमेशा अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश की, मगर जुनीद के बदलते रवैये, झूठ और छिपकर मिलने की आदत ने उसके दिल को अंदर ही अंदर तोड़ दिया। जब मायरा ने खुददारी के साथ अलीहदगी का रास्ता अख्तियार क्या, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि एक बाशूर औरत का फैसला था जो जान चुकी थी कि जबरदस्ती का रिश्ता इज्जत नहीं दे सकता। दूसरी तरफ जुनीद अब जिज्जी के करीब आकर भी मुतमईन नहीं था, क्योंकि जो सुकून वो मोहब्बत में ढूंढ रहा था वह उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। जिज्जी की मोहब्बत सवालों, पाबंदियों और शक में बदलने लगी थी, और जुनीद पहली बार ये सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। इसी दौरान आसिया के पास ऐसे सबूत इकट्ठे हो चुके थे जो जिज्जी के असल चेहरे को बेनुकाब करने के लिए काफी थे। आसिया जानती थी कि सच सामने लाना आसान नहीं होगा, मगर वो ये भी समझ चुकी थी कि खामोश रहना मायरा के साथ नाइंसाफी होगी। आने वाला वक्त इस कहानी में फैसला कन साबित होने वाला था, जहां एक तरफ झूठ, लालच और हौस का इंजाम सामने आएगा और दूसरी तरफ सच, सब्र और खुददारी सरखरो होकर ये साबित करेंगे कि वक्ती फतह चाहे जितनी भी दिलकश क्यों न लगे, इंजामकार सच ही गालिब आता है। अब कहानी उस निकते पर पहुंच चुकी है जहां जज्बात के साथ साथ अंजाम की परछाइयां भी नुमायां होने लगती हैं। जुनीद जिज्जी के साथ रहते हुए बेज़ाहिर आज़ाद महसूस करता है, मग
कहानी की गहराई में मजीद उतरने पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि जुनीद, मायरा और जिज्जी के ताल्लुकात महज रिश्तों की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानी ख्वाहिशात, गुरूर और नफसियाती दबाव पर टुके हुए हैं। जुनीद, जिसने इब्तिदा में जिज्जी की तारीफ और तूजा को मोहब्बत समझा, अब उसके फैसलों का बोझ अपने दिल पर महसूस कर रहा है। उसने मायरा की वफादारी और बेपनाह मोहब्बत को नजरअंदाज करके चंद लम्हों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता तोड़ दिया, और ये गलती उसके दिल में इत्तराब, पछतावे और खौफ पैदा कर रही है। जिज्जी हर लम्हा उसके जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, उसके दिल में मायरा के बारे में शक पैदा करती है और जुनीद को ये यकीन दिला रही है कि वो ही उसकी जिंदगी की सब से बड़ी ज़रूरत है। जिज्जी की ये हिकमत अमली उसके अंदर छपी चालाकी और मकारी को जाहिर करती है, जिसका मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील है, ना कि सच्चे दिल की मोहब्बत। मायरा इस सब के बराकस सब्र और हिम्मत की अलामत बनी हुई है। अपने वालदीन के घर जाकर वो सिर्फ अपने दिल को संभाल नहीं रही बल्कि मुस्तकबल की मंसूबाबंदी कर रही है ताकि एक दिन जिज्जी की तमाम साजिशें बेनकाब हो सकें। मायरा की जहानत और खुददारी इस बात का सबूत है कि औरत की इज्जत और वक़ार ही उसकी सब से बड़ी ताकत है। आसिया, जो बज़ाहिर जिज्जी की नौकरानी है, हकीकत में सब कुछ देख रही है और उसके दिल में हक के लिए बोलने का अज़्म पैदा हो चुका है। आसिया जान चुकी है कि जिज्जी के झूठ, चालाकी और मकर से सिर्फ एक घर नहीं बल्कि कई जिंदगियों को नुकसान पहुंच सकता है, और यही शूर उसे सच सामने लाने पर मजबूर करेगा। ये कहानी अब महज मोहब्बत, हसद या धोखे की नहीं रही बल्कि ये एक अखलाकी जंग में तब्दील हो चुकी है, जहां हर किरदार के फैसले का असर न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगियों पर भी पड़ रहा है। जिज्जी की वक्ती फतह और जुनीद की अंधी मोहब्बत इस हकीकत को छिपा नहीं सकती कि सच्चाई और इंसाफ की क़ुव्वत आखिरकार गालिब आएगी। आने वाले वक्त में जब आसिया हक़ाइक़ सामने लाएगी तो जिज्जी की मकारी का पर्दा उतर जाएगा। जुनीद को अपनी गलतियों का एहसास होगा और मायरा की साबित कदमी ये साबित करेगी कि सब्र, हौसला और हकीकत की ताकत हमेशा झूठ और फ़रेब पर गालिब आती है। ये कहानी इंसान की कमज़ोरी, अज़्म, अखलाक और इंसाफ के फ़लसफ़े की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती है, जिसमें हर किरदार की सूझ और हर अमल का अंजाम वाज़ेह और सबक आमोज़ है। कहानी की सबसे गहरी परत में उतर कर देखा जाए तो ये सिर्फ एक मोहब्बत का मुसल्लस नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात, ख्वाहिशात, गुरूर और अखलाकी अक़दार का भरपूर मज़ाहिरा है। जुनीद की शख्सियत इब्तिदाई तौर पर एक ऐसा शौहर थी जो मायरा की मोहब्बत, एतमाद और घर की जिम्मेदारियों का कदरदान था, मगर जिज्जी की चालाकी और दिल लिभाने वाले रवैये ने उसके दिल में गुरूर, होश और वक्ती खुशी के जज्बात पैदा कर दिए। रात के अंधेरे में जिज्जी के घर जुनीद का जाना महज मुलाकात नहीं बल्कि उसका इखलाकी ज़वाल था, जहां उसने न सिर्फ मायरा के एतमाद को तोड़ा बल्कि अपने अखलाकी किरदार को भी नुकसान पहुंचाया। जिज्जी हर लम्हा जुनीद को अपनी मर्दी के मुताबिक काबू में रखने की कोशिश करती है, उसके जज्बात पर खेलती है और मायरा के बारे में उसके दिल में शक पैदा करके अपने फ़ायदे के लिए हालात को कंट्रोल में रखती है। दूसरी जानिब मायरा ने दुख, सदमे और धोखे के बावजूद खुददारी और शूर का मुजाहिरा किया। वो अपने वालदेन के घर जाकर अपनी ताकत को दोबारा समेट रही है और अपने हौसले को मजबूत कर रही है ताकि कहानी की सबसे बारीक परत में जाकर देखें तो ये वादे हो जाता है कि जुनीद, मायरा और जिज्जी का रिश्ता महज मोहब्बत या रिश्ते की बुनियाद पर कायम नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात, ख्वाहिशात, गुरूर और अखलाकी हुदूद की आजमाइश पर टुका हुआ है। जुनीद ने इब्तिदा में जिज्जी की तौजा और तारीफ को मोहब्बत समझा और यही गलत फहमी उसके जवाल की जड़ बन गई। उसने मायरा की वफादारी और बेपनाह मोहब्बत को नज़रअंदाज करके चंद लम्हों की खुशी और जिज्जी की चालाक मुस्कुराहट के पीछे चलना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जिज्जी के घर जाना उसके अखलाकी और समाजी जवाल की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि उसने अपने रिश्ते की हरमत, अपनी बीवी की इज्जत और अपने ख़ानदान की वक़ात सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। जिज्जी हर लम्हा जुनीद को अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक काबू में रखने की कोशिश करती है, उसके दिल में मायरा के लिए शक डालती है और जुनीद को ये यकीन दिलाती है कि वो ही उसकी ज़िंदगी की सब से बड़ी ज़रूरत है। हालांकि ये सब महज उसकी अपनी अना और हौस की तस्कीना के लिए क्या जा रहा है। दूसरी तरफ मायरा की शख्सियत इस कहानी में ताकत, सब्र और शूर की अलामत है। उसने दुख, धोखा और बेवफाई के बावजूद अपनी इज्जत और वक़ार को बरकरार रखा। वद्दीन के घर जाकर वो महज महफूज नहीं रही बल्कि अपनी ताकत और हिकमत को जमा कर रही थी ताकि वक्त आने पर जिज्जी की तमाम
साजिशें बेनकाब हो सकें। मायरा की ये सोच ये जाहिर करती है कि औरत की असल ताकत उसके ईमान, हौसले और अखलाक में है, जो उसे सख्त हालात में भी दरस्त रास्ता अपनाने की हिम्मत देती है। इसी दौरान आसिया, जो बज़ाहिर सिर्फ जिज्जी की नौकरानी थी, हकीकत में सब कुछ देख रही है और उसके दिल में सच बोलने का अज़्म पैदा हो चुका है। आसिया ने महसूस कर लिया कि जिज्जी की मुकारी, झूठ और चालाकी न सिर्फ मायरा की जिंदगी बल्कि जुनीद की शख्सियत और फैसलों को भी तबाह कर रही है, और यही शऊर उसके अंदर एक मजबूत हिम्मत पैदा करता है कि वो हक का साथ दे। कहानी अब एक फैसला कुन मरहले पर पहुंच गई है, जहां झूठ, फरेब और लालच अपनी अंधा पर हैं, लेकिन हकीकत, सब्र और इंसाफ भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। आने वाले वक्त में जब आसिया सच सामने लेकर आएगी तो जिज्जी के झूठ का पर्दा उतर जाएगा, जुनीद को अपनी गलतियों का इदराक होगा, और मायरा की साबित कदमी ये साबित करेगी कि सब्र, हौसला और सच्चाई हमेशा झूठ, फरेब और होश पर गालिब आती है। ये कहानी सिर्फ रिश्तों की बर्बादी की दास्तान नहीं, बल्कि इंसान की अखलाकी अक़दार, फैसलों की अहमियत और ज़िंदगी में इंसाफ की फतह की मुकम्मल तस्वीर पेश करती है, जो हर किरदार के लिए सब कामोज़ है। कहानी की सबसे अंदरूनी परत में उतर कर देखा जाए तो ये न सिर्फ मोहब्बत और रिश्तों की कहानी है, बल्कि इंसानी नफ्स, अखलाकी कमज़ोरियों, ख्वाहिशात और खुद गर्दी की एक पेचीदा तस्वीर भी पेश करती है। जुनीद की शख्सियत इब्तदा में एक ऐसा शोहर थी जो मायरा की मोहब्बत, एतमाद और घर की जिम्मेदारियों को कदर की निगाह से देखता था, मगर जिज्जी की चालाकी, हसन और नफसियाती हिकमत ने उसके दिल में एक फरेब का जाल बिछा दिया। जुनीद ने महसूस किया कि मायरा उसकी कदर नहीं करती, हालांकि हकीकत ये थी कि मायरा ने हमेशा उसकी खुशी और इज्जत को अपने दिल की पहली तरजीह बनाया। जिज्जी ने यह समझा कि जुनीद के दिल में थोड़ी सी खुशी की ख्वाहिश काफ़ी है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसे काबू में कर ले। रात के अंधेरे में मुलाकातें और छप छप कर मिलना महज मोहब्बत नहीं, बल्कि एक ऐसा नफसियाती खेल है जिसमें जुनीद अपनी ज़मीर की आवाज़ कहानी की सबसे अंदरूनी परत में उतर कर देखा जाए तो ये न सिर्फ मोहब्बत और रिश्तों की कहानी है, बल्कि इंसानी नफ्स, अखलाकी कमज़ोरियों, ख्वाहिशात और खुद गर्दी की एक पेचीदा तस्वीर भी पेश करती है। जुनीद की शख्सियत इब्तदा में एक ऐसा शोहर थी जो मायरा की मोहब्बत, एतमाद और घर की जिम्मेदारियों को कदर की निगाह से देखता था, मगर जिज्जी की चालाकी, हसन और नफसियाती हिकमत ने उसके दिल में एक फरेब का जाल बिछा दिया। जुनीद ने महसूस किया कि मायरा उसकी कदर नहीं करती, हालांकि हकीकत ये थी कि मायरा ने हमेशा उसकी खुशी और इज्जत को अपने दिल की पहली तरजीह बनाया। जिज्जी ने यह समझा कि जुनीद के दिल में थोड़ी सी खुशी की ख्वाहिश काफ़ी है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसे काबू में कर ले। रात के अंधेरे में मुलाकातें और छप छप कर मिलना महज मोहब्बत नहीं, बल्कि एक ऐसा नफसियाती खेल है जिसमें जुनीद अपनी ज़मीर की आवाज़ को दबाने लगता है और मायरा के एतमाद को ठेस पहुंचता है। मायरा की शख्सियत इस दास्तान में सब्र, हौसला और शऊर की अलामत है। उसने दुख, धोखा और बेवफाई के बावजूद अपनी इज्जत, वक़ार और खुददारी को कायम रखा। वद्दीन के घर जाकर वो महज महफूज नहीं रही, बल्कि अपनी हिकमत और ताकत को दोबारा जमा कर रही थी, ताकि जब वक्त आए तो जिज्जी की तमाम मकारी, फरीब और झूठ बेनकाब हो सके। मायरा की ये सोच ये जाहिर करती है कि औरत की असल ताकत उसके ईमान, सब्र और शऊर में है, जो उसे इंतहाई मुश्किल हालात में भी दरस्त फैसला करने की हिम्मत देती है। इसी दौरान आसिया, जो बज़ाहिर सिर्फ जिज्जी की नौकरानी थी, हकीकत में सब कुछ देख रही है और उसके दिल में सच्चाई के लिए बोलने का अज़्म पैदा हो चुका है। आसिया ने महसूस कर लिया है कि जिज्जी की मुकारी और धोखा न सिर्फ मायरा बल्कि जुनीद की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा है, और यही शऊर उसमें ताकत पैदा कर रहा है कि वो वक्त आने पर सच सामने लाए। कहानी अब एक फैसला कुन मोड़ पर है, जहां झूठ, फरेब और लालच अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं, लेकिन हकीकत, सब्र और इंसाफ भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं। आने वाले वक्त में जब आसिया सच सामने लाएगी, जिज्जी की मुकारी का पर्दा उतर जाएगा, जुनीद को अपनी गलतियों का इदराक होगा और मायरा की साबित कदमी ये साबित करेगी कि सब्र, हौसला और सच्चाई हमेशा झूठ, फरेब और होश पर गालिब आती है। ये कहानी महज रिश्तों की बर्बादी की दास्तान नहीं, बल्कि अखलाक, इज्जत, इंसाफ और इंसानी फैसलों की अहमियत की मुकम्मल तस्वीर पेश करती है, जो हर किरदार के लिए एक सबक आमोज़ और ज़िंदगी बदलने वाला पैगाम है। कहानी की सबसे गहरी परत में उतर कर देखा जाए तो ये महज मोहब्बत या रिश्तों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात, अखलाकी कमज़ोरियों, ख्वाहिशात, गुरूर और ताकत की एक पेचीदा तस्वीर पेश करती है। जुनीद की शख्सियत
ابتدا میں ایک ایسا شوہر تھی جو مائرہ کی محبت، اعتماد اور گھر کی ذمہ داریوں کو دل سے سمجھتا تھا، مگر ججی کی چالاکی، حسن اور نفسیاتی حکمت نے اس کے دل میں شک، حوس اور غرور کی بیج بو دی۔ جنید نے محسوس کیا کہ مائرہ اس کی قدر نہیں کرتی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مائرہ نے ہمیشہ اس کی خوشی، عزت اور سکون کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ ججی نے جنید کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ صرف وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہی خیال جنید کو آہستہ آہستہ اس کے اپنے اخلاقی اصولوں اور ذمہ داریوں، کہانی کی سب سے اندرونی تہ میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ صرف ایک محبت یا شادی کے مسئلے کی داستان نہیں، بلکہ انسانی نفسیات، اخلاقی اقدار، غرور، خواہشات اور اختیار کی ایک مکمل تصویر ہے۔ جنید کی شخصیت ابتدا میں ایک عام شوہر کے طور پر نظر آتی ہے جو مائرہ کی محبت اور اعتماد کا محافظ تھا، مگر ججی کی چالاکی، حسن اور نفسیاتی حکمت نے اس کے دل میں شک، حسد اور حوص کے بیج بو دیے۔ جنید نے محسوس کیا کہ مائرہ اس کی قدر نہیں کرتی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ججی نے جنید کے دل میں یہ سوچ پیدا کر دی کہ صرف وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہی سوچ جنید کو اپنی اخلاقی اور سماجی ذمہ داریوں سے دور لے گئی۔ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں اور ججی کے گھر جانا محض محبت کا عمل نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی کھیل تھا جس میں جنید نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے اور مائرہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا انتخاب کیا۔ مائرہ کی شخصیت اس کہانی میں حوصلہ، صبر، شعور اور خودداری کی علامت ہے۔ اس نے دکھ، دھوکہ اور بے وفائی کے باوجود اپنی عزت، وقار کو قائم رکھا۔ ودین کے گھر جا کر وہ صرف محفوظ نہیں رہی، بلکہ اپنی حکمت، شعور اور طاقت کو جمع کر رہی تھی تاکہ وقت آنے پر ججی کی تمام مکاری، جھوٹ اور فریب بے نقاب ہو سکے۔ مائرہ کا ہر عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کے ایمان، حوصلے اور شعور میں ہے، اور یہی طاقت اسے انتہائی مشکل حالات میں بھی صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ اسی دوران آسیہ، جو بظاہر ججی کی نوکرانی ہے، حقیقت میں سب کچھ دیکھ رہی ہے اور اس کے دل میں سچ بولنے کا عزم پیدا ہو چکا ہے۔ آسیہ نے محسوس کر لیا کہ ججی کی مکاری اور دھوکہ نہ صرف مائرہ بلکہ جنید کی زندگی کو بھی تباہ کر رہا ہے، اور یہی شعور اس میں طاقت پیدا کر رہا ہے کہ وہ وقت آنے پر سچ سامنے لائے۔ کہانی اب ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ چکی ہے، جہاں جھوٹ، فریب، خواہش اور لالچ اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، لیکن حقیقت، انصاف اور صبر بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ آنے والے وقت میں جب آسیہ سچ سامنے لے کر آئے گی تو ججی کی مکاری، جھوٹ اور دھوکہ بے نقاب ہوں گے، جنید کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہوگا، اور مائرہ کی ثابت قدمی یہ ظاہر کرے گی کہ صبر، حوصلہ، شعور اور سچائی ہمیشہ جھوٹ، فریب اور ہوس پر غالب آتی ہے۔ یہ کہانی محض رشتوں کی بربادی یا محبت کی ناکامی کی داستان نہیں، بلکہ انسانی اخلاق، فیصلوں کی اہمیت، اعتماد اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی ایک مکمل اور سبق آموز تصویر پیش کرتی ہے، جو ہر کردار کے لیے اور ہر کاری کے لیے زندگی بدلنے والا پیغام رکھتی ہے۔ کہانی کی سب سے اندرونی پرت میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جنید، مائرہ اور ججی کا تعلق صرف محبت یا شادی کے رشتے تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات، اخلاق، غرور، خواہشات اور ضمیر کی ایک پیچیدہ جنگ ہے۔ جنید نے